Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Now start preparing for your exams. Your exams will be starting after 17th of December. You know that, no? You have got the timetable as well, correct? Yes, ma'am. Hmm. So, what we were doing last time, we completed all these topics, correct? Articles, prepositions, conjunctions, subject, predicate, transformation of sentences, simple, compound, complex. Then we have completed question tags and removed two types of sentences, assertive, negative, exclamatory, correct? If you are able to see the syllabus, correct? Yes, So only few topics are remaining. Tenses, subject, verb, agreement also I've done a little earlier, but still, uh, uh, anybody had started syllable, voice, again everything, voice and direct, indirect speech in your class. Any other teacher? no, ma'am. Hmm? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So now I will get one. Hello, I will get one more lecture. Okay, today is 7th, one more lecture is on 14th, correct? And after that, your exams will start. Now, since when your exams are starting? That is from 22nd. मैम 22nd. Yeah. मैम 22 से एग्जाम है ट्यूसडे हाँ, को. तो 21st को भी मैं, अगर तुमको चाहिए तो CS का लेक्चर ले सकती हूँ रिवीजन के लिए. Yeah, will do, madam. ओके, Yeah, will do. तो Yeah, Yes, yeah. ma'am. Okay, ma'am. हाँ, तो मैं 21st तक, अगर मुझे 1 बजे कोई एग्जाम ड्यूटी या कोई और असाइनमेंट नहीं हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी और ढंग से ले लूंगी फिर. बट इज Okay, इट ma'am. क्लियर? तो मैं अभी तुम्हें टेंसेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाती हूँ, ठीक है? फिर वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. एक्चुअली तुमने 12th तक ये सब टॉपिक्स किए हुए हैं ऑलरेडी ना, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट Yes, स्पीच. ma'am. फिर भी मेरी ड्यूटी है एक बार करवाना, तो मैं करवाती हूँ, ठीक है? ओके, तो व्हाट इज टेंस? टेंस जब हम करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, ओके, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर द 3 टाइप्स? Past, present, future. हाँ, And future. करेक्ट. Yeah. So you Yeah. all know that tenses are of 3 types, correct? Present, past and future, ठीक है? Now all these tenses, tense means, the word tense means type, time, okay? So present means, now if I say I go to college, it is present tense, correct? If I say I went to college, it is past tense. If I say I will go to college, it is future tense, correct? Now all of you understand this, correct? No? Yeah, yeah. So each present, past, future all has 4 types. You know that present tense, past tense all has 4 types. Let me take this. Okay, if we make this, then all has 4 types. Now indefinite, present, first is indefinite, correct? Present indefinite tense, which is also known as present indefinite tense. Okay, then we have past indefinite, है ना? Then future indefinite. So all 3 types have these types, correct? Future indefinite, या मैम. है ना? Then comes continuous tense, correct?
So all three are continuous as well. Is it clear? Then Yeah, ma'am. please Yes, ma'am. switch off your audio, whoever has started. So present continuous, past continuous, and future continuous. Correct? This is indefinite. This is continuous. Then third is perfect. Hello, ma'am. Yes. Background sound is coming, ma'am. Yeah. Can you unmute them? I will Please mute them. Yeah. I am doing that. Yeah, thanks. Okay. Now it's fine. Yeah. Okay. So every present tense has also 4 types, past tense has also 4 types, future tense has also 4 types. First type is indefinite tense, second is continuous tense, and third is perfect tense. Correct? And fourth is perfect continuous. Okay. So and when we say is it clear? Understood? So all three, present indefinite, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Similarly, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Is it clear to you? All must be knowing these things, no? To everyone it's clear. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. मैम एक बार Yes, ma'am. कंटिन्यूअस टेंस का बताओ। नहीं सबका डिटेल बताऊंगी, खाली इतना समझ आया है क्या ये 4 टाइप हर टेंस के होते हैं, ये पूछ रही हूँ। हाँ सबका डिटेल बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस or past indefinite tense, how it is to be done, and future indefinite tense. So when we talk about present, we write in this form: I, we, you, they. कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो सपोज इफ इट इज we go to school is example of present indefinite tense. ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. अगर इसी को हम पास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई यू वी दे वेंट टू स्कूल. ठीक है? सो दिस इज प्रेजेंट. पास्ट में क्या होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी. इज इट क्लियर? तो वी विल राइट वेंट. तो वेंट क्या है? गो क्या है? प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब. वेंट क्या है? पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. गो की जगह अगर हम वेंट यूज करेंगे तो ये इट विल बिकम पास्ट इंडेफिनिट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अगर हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? शैल और विल गो. ठीक है? गो होगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा.
Is it clear? Now when we use negative, suppose I, we, you, they, do not go हो जाएगा फिर, ठीक है ना. अगर पास्ट में यूज करेंगे तो डिड नॉट गो हो जाएगा, ठीक है. और अगर फ्यूचर में यूज करेंगे तो शैल विल नॉट गो होगा, ठीक है. तो नॉट ऐड होगा खाली उसमें, ये आपको पता होना चाहिए. और अगर सपोज हम सिंगुलर ही शी इट के साथ यूज करते हैं तो ही शी इट में क्या आ जाएगा, इट और कोई सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, नाउन. तो सिंगुलर नाउन के साथ हम कैसे यूज करेंगे, ही डज नॉट गो, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट गो हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव में. और पॉजिटिव में क्या होगा, गोज. क्लियर. और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डज, डज बिगनिंग में आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना. अंडरस्टूड. और प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट गो, ठीक है. तो प्लूरल के साथ क्या होगा, डू नॉट गो, ठीक है. और अगर क्वेश्चन होगा तो डू और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना. तो ये आपको समझ आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबको समझ आ गया. Yes, ma'am. हाँ. पास्ट इंडेफिनिट भी मैंने आपको समझा दिया, डिड नॉट गो होएगा, वेंट होगा, अगर इंटरोगेटिव होएगा तो डिड और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट में क्वेश्चन मार्क, फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो विल शैल पहले आ जाएंगे, ठीक है. अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 प्लस S और ES, है ना, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है. कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, V1 वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है. अंडरस्टूड. परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, है ना, V3, ठीक है. और इसमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट है तो इजेमआर यूज होगा, ठीक है ना, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इजेमआर. तो कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर. इज इट क्लियर. प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना. प्रेजेंट टेंस में आया समझ. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING और उसके बाद वर्ब के बाद सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सिंस या फोर में से कुछ यूज करते हैं, ठीक है. तो बाद में जब सेंटेंस एंड होता है तो उसमें सिंस या फोर कुछ यूज करते हैं, ठीक है. वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कंजंक्शन वगैरह करवाया है. तो सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताया था ना, याद होगा तो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES होती है. पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस, ठीक है ना.
फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस विल और शैल ना, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सपोज आई से मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अगर इसको हम नेगेटिव में करेंगे तो मोहन इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज मोहन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इज मोहन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आया समझ। अगर प्लूरल में करेंगे तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, है ना, ऐसे आया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह क्या यूज होगा, वॉज वर, ठीक है। वो हो जाएगा पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अगर फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो क्या होगा, शैल विल, ठीक है, बी प्लस V1 प्लस ING। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहन शैल विल नॉट, मोहन शैल बी गोइंग टू स्कूल। इज इट क्लियर। इसको अगर नॉट करना है तो मोहन शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ओके। और अगर फ्यूचर में करना, इंट्रोगेटिव में करना है तो शैल मोहन नॉट बी गोइंग टू स्कूल, करेक्ट। इंट्रोगेटिव में शैल आगे आ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ। यस मैम। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस आज रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी ने पूछा था मुझे कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, किसने पूछा था, उसको समझ मैंने आया, पूछा था मैम। आपको समझ आया अभी। हाँ मैम आया। हाँ, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ वी कम टू परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आई, बी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, ठीक है। में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दे हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज, ठीक है। अगर नॉट होगा तो दे हैव नॉट हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन होगा तो हैव दे हो जाएगा, ठीक है ना, हैव दे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो दिस इज परफेक्ट टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आप लोग नोट करते रहो इसको। और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट शी हैड नॉट आजी चावल खा। taken her lunch, सपोज। इज इट क्लियर। तो ये नेगेटिव हो गया, शी हैड टेकन हर लंच, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, अफर्मेटिव असर्टिव। हैड शी टेकन हर लंच, हैड शी नॉट टेकन हर लंच, ये अपन करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। अभी फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होगा, ही, शी, इट, ठीक है। इनके साथ क्या यूज होगा, विल, ही, शी, इट, विल, ठीक है ना।
तो अभी ही और शी के साथ हम सपोज, और सिंगुलर नाउन के साथ सपोज सीता will have gone to थिएटर। तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। समझ आया? अगर इसमें नॉट लगाना है तो ही शी विल नॉट हैव, ठीक है। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही शी सीता नॉट हैव गॉन टू थिएटर। तो विल आगे आ जाएगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आती है दैट मीन्स इज इट क्लियर? आपको समझ आ रहा है कुछ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे करेंगे? ओ सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे? आई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप क्या करेंगे? आई, वी, यू, दे, ठीक है। इनके साथ क्या यूज करेंगे? हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है। और कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ दे हैव बीन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इज इट क्लियर? मॉर्निंग, अगर ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट के लिए क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए ही, शी, इट, ठीक है। और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके से ले, तो इट को एक बार रिमूव कर देते हैं क्योंकि इट जो है वो हमेशा उसके लिए सेंटेंस अलग तरह से यूज करना पड़ता है ना। ही, शी, हैज बीन। और सपोज कोई एक नाम ले लेते हैं, रोहन हैज बीन आर्ग्यूइंग। किसी का नाम रोहन है क्या क्लास में? मैंने ऐसे ही लिख दिया। रोहन हैज बीन आर्ग्यूइंग विद द नेबर फॉर 2 hours, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर यूज हुआ है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे तो क्या होगा? सपोज आई राइट सुनीता will have been gardening the plants since 6 AM। Is it clear? तो उसमें will have been
shall have been plus verbs first form plus ing आएगा. Is it clear? समझ आया आपको? हेलो. Yes, ma'am. अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम यही करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब कैसी यूज होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. इसलिए मैंने इसको आपको पहले ज्यादा नहीं करवाया था, थोड़ा बहुत मैंने करवाया है पीछे, वो अभी आपको करूंगी तो समझ आ जाएगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? अगर सिंगुलर है नाउन प्रोनाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी. जैसे ही के साथ हम हैव नहीं यूज कर सकते, शी के साथ हैव नहीं यूज कर सकते. क्लियर ना? अंडरस्टूड नो? प्लूरल Yes, है, ma'am. दे Yes, के ma'am. साथ दे है, प्लूरल है और तो हम हैव ही यूज करेंगे. सिमिलरली इज एम आर में क्या होता है? सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं. सिमिलरली सिंगुलर के साथ वॉज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा तो सिंगुलर वर्ब होगी. ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? यही है. ठीक है? तो आई एम रबिंग इट एंड देन वी विल डू प्रैक्टिस. ये कौन बार बार हो जाता है? कोई ना कोई. ठीक है? अभी अभी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है. तो वर्ब फॉर्म कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब. ठीक है ना? एक्सेप्ट आई, वी, आई और यू और आई सिंगुलर होते हैं तभी भी सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर फॉर्म कभी कभी नहीं यूज होती है. ठीक है ना? मतलब जो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है. बट प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. ये टेंसेज के लिए भी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था, अभी तक करवाया नहीं था. इज इट क्लियर? अभी देखो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी टेंसेज में दिए हैं. ठीक है ना? तो अभी मैं बोलती हूँ राम एंड मोहन ओके. तो राम एंड मोहन दोनों मिला के क्या हुआ? प्लूरल हुआ कि सिंगुलर? प्लूरल. तो इसके साथ हम इज नहीं लगा सकते, एम नहीं लगा सकते, वो सिंगुलर के लिए यूज होएगा ना. ठीक है? वॉज नहीं लगा सकते. अगर पास्ट टेंस है तो वी विल यूज वर. इफ प्रेजेंट टेंस है तो आर. ठीक है? और फ्यूचर टेंस है तो विल. इज इट क्लियर? तो इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं. राम एंड मोहन हैव watched the movie at home. क्लियर? अगर बट खाली राम या खाली मोहन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हैज. ठीक है ना? तो हम अगर सपोज राम है, खाली राम है तो वी कांट यूज हैव, वी विल यूज हैज. ठीक है? तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज वर्ब. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको सबको? Yes, ma'am. ठीक है? तो आपने बहुत सारा किया रहेगा. इज इट क्लियर? तो आपको, आपने 12th तक ग्रामर किया है तो थोड़ा बहुत आपको मालूम ही होगा.
अभी वॉइस जो करते हैं, वॉइस में क्या करते हैं हम, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो अभी ये जो सेंटेंस है, राम हैज वॉच्ड द मूवी एट होम और राम एंड मोहन हैव वॉच्ड द मूवी एट होम, ये एक्टिव वॉइस है, करेक्ट। कौन सा वॉइस है ये, एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। हैज वॉच्ड क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब। और द मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले हमें एक्टिव वॉइस में देखना है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, फिर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो द मूवी, ठीक है, ओके, वो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की जगह क्या बन गया, सब्जेक्ट, ठीक है। द मूवी को हमने सब्जेक्ट बनाया, हैज किस में चेंज होगा, हैज बीन में, ठीक है। द मूवी हैज बीन वॉच्ड, फिर वर्ब एज इट इज आएगा, वॉच्ड। फिर बाय, बाय हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। तो बाय यूज करके फिर हम चेंज करेंगे वॉच्ड बाय। बाय यूज करने के बाद जो सब्जेक्ट था राम, उसको एज इट इज, अगर नाम है तो उसको एज इट इज ही लिखेंगे राम। अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की क्या होती है, हिम। शी है तो हर, दे है तो देम, आई है तो मी, यू है तो यू, वी है तो अस। ऐसे आपको पता ही होगा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स का। तो ऐसे एक्टिव पैसिव हम करते हैं। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. तो आपको एक्टिव पैसिव आपने 12th तक किया ही रहेगा ना, किया है ना। हाँ मैम। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं और लेक्चर लेके आपको और प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और सब करवाऊं। बट मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वो थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ। सेज, ही सेज, ठीक है। फिर इसको आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। और ये, तो इसमें क्या होता है, जब ये जो है ही सेज जो है वो कॉमे से पहले है, ठीक है, कॉमा से पहले है। और आई एम एन ऑनेस्ट मैन है जो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज के बाद है, ठीक है। तो ये एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेज जो है वो रिपोर्टिंग है, और ही आई एम एन ऑनेस्ट मैन ये है जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, ही सेज और ही विल से, अगर ही विल से है तो अंदर का जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता नहीं है, इसलिए टेंस करवाना पहले जरूरी था, ठीक है। ही विल से और ही सेज है तो आई एम एन ऑनेस्ट मैन ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेज दैट। दैट यूज करते हैं अगर सिंपल सेंटेंस है, तो क्वेश्चन रहेगा तो वेदर और इफ। ही सेज दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ये है,
अगर फ्यूचर टेंस है ये तो ही विल से, और ये एज इट इज ही रहेगा, दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होएगा। बट ये ठीक है क्या, आई की जगह क्या होना चाहिए, आई एम आएगा क्या, कुछ और आएगा? लेने देना नहीं। He is. यस, जब भी मैं वही देख रही थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो चल रहा है सब। क्वेश्चन बैंक कब मिलेगा सीएस का? हाँ, क्वेश्चन बैंक अभी मैंने आपको ग्रामर की बहुत सारी एक्सरसाइज गूगल क्लासरूम में भेजी है ना? चेक किया है किसी ने? यस मैम। हाँ, तो वो Yes, करो, ma'am. तब तक प्रैक्टिस करो वो तब मैम, हाँ, आपने ट्रू और फॉल्स सेंड किया है? क्या? आपने ट्रू और फॉल्स सेंड किया ना हाँ एक्सरसाइज में? हाँ, उसमें वो इंग्लिश लिटरेचर का भेजा है ना? तो हम लोग के लिए नहीं है ना, सीएस के लिए नहीं है ना? सीएस की क्लासरूम में थोड़ी ना भेजा है, वो इंग्लिश की क्लासरूम नहीं, में। सीएस में भेजा है मैम आपने। ट्रू फॉल्स हम्म क्या भेजा है ट्रू फॉल्स में? 8 क्वेश्चन है ट्रू और हाँ फॉल्स में। हाँ, क्या क्वेश्चंस है? आपने कुछ तो नोवेल के बारे में ना पूछा है, मगर वो हम लोग को पढ़ाया नहीं वो उधर। सीएस की क्लास में नहीं भेजा, वो इंग्लिश की क्लास में भेजा है। तुमने इंग्लिश का ग्रुप भी ज्वाइन किया रहेगा, ऐसे हो सकता है ना, आपका इसमें ज्वाइन है। है। हाँ, मेरे उसमें ही तुमने इंग्लिश का क्लासरूम भी ज्वाइन किया रहेगा गलती से। वो ओके मैंने मैम, इंग्लिश ओके की मैम, क्लास में भेजा है, सीएस की क्लास में नहीं भेजा। ओके ठीक है, क्लियर? यस। मैम, इंग्लिश का भी सेपरेट ग्रुप है क्या? गूगल क्लासरूम, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसको ऐड तो किया था परसों। कौन पूछ रहा है ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐड नहीं हूँ ना इंग्लिश के कम्युनिकेशन व्हाट स्किल इज वाले में। योर नेम? व्हाट इज योर ताहिर है। नेम? ताहिर ताहिर है, को मैंने ताहिर। ऐड तो किया था ना। मेन ग्रुप इज सीएस वो ग्रुप। तो एंसिलरी है मैम। इंग्लिश एंड सैलरी और इंग्लिश का ग्रुप एक ही है। और सीएस का ग्रुप है ना, हम्म, नॉर्मल ही है, ऑफिशियल ग्रुप है एबीसी का। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, तो यू डोंट गेट कंफ्यूज। इंग्लिश communication skills is CS, communication skills in English, English literature and English ancillary is one subject, same subject। समझा? अभी किसको क्या कंफ्यूजन है? इंग्लिश एंसिलरी जिसमें आप नॉवल, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो और लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हो, वो इंग्लिश एंसिलरी या इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और सीएस है जिसमें आप ग्रामर पढ़ रहे हो, लेटर राइटिंग पढ़ रहे हो, पैराग्राफ राइटिंग पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हो, वो सीएस है। समझ आया सबको? अभी यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ नो लो। मैम। आप किस ग्रुप में ऐड हो, नहीं ऐड हो, अपने फ्रेंड्स को बोलो ना, जो एडमिन है वो ऐड करेंगे ना आपको। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ और बोल रही हूँ? हाँ मैम। इज इट क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज। सीएस का जो ग्रुप गूगल क्लासरूम है वो FYBA ABC का है, इंग्लिश का भी क्लासरूम ABC का है, इसलिए मे भी तुमने मिस्टेक से इंग्लिश का क्लासरूम भी ज्वाइन किया है और इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिया है, ऐसा भी हो सकता है ना। मुझे मालूम नहीं ना कितने स्टूडेंट्स ने मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है लिटरेचर के स्टूडेंट्स की। सीएस इज कंपल्सरी सब्जेक्ट while
इंग्लिश एंसिलरी इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज द डिफरेंस। CS सबके लिए कंपलसरी है जिसने FY BA में एडमिशन लिया है, इंग्लिश एंसिलरी आपने खुद से चुना है। ठीक है, आया समझ सबको? यस मैम। अभी अगर पास्ट टेंस है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा? सपोज मैं बोलती हूँ ही सेड, ओके, आई विल आई नहीं यूज करते, सपोज मैं यूज करती हूँ ही सेड दे विल बी डांसिंग इन द हॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ही सेड दैट। ठीक है, दे जो है वो प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पे ही सेड दैट, दे का दे ही रहेगा। ठीक है, विल का क्या हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा, दे वुड बी डांसिंग इन द हॉल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जब पास्ट टेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो अंदर का जो सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, उसका टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। तो ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स आपने अगर किए हैं पहले तो पता ही होंगे। ठीक है, तो ये था अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने शुरू और ख़त्म नहीं किया, खाली आपको बताया कि वॉइस क्या होता है अगर किसी को नहीं मालूम, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है अगर किसी को अभी तक नहीं मालूम तो। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं टेंस से रिलेटेड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैं ग्रामर एक्सरसाइज जो मैंने दी है आपको शुरू में 1 और 2, उसमें से हम कुछ सेंटेंस लेते हैं तो आपको समझेगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? यस। फर्स्ट सेंटेंस क्या? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, अ गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लीवर। अभी लाइफ क्या है? सिंगुलर है ना, करेक्ट? Yes, ma'am. तो डिपेंड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रही हूँ। और ये प्रेजेंट टेंस है। डिपेंड्स क्या है? प्रेजेंट टेंस। द ग्लो ऑफ द ट्यूबलाइट वाज एज ब्राइट एज द सनशाइन। तो ग्लो वर्ड जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वाज यूज हुआ। ये वाज क्या है? पास्ट टेंस है। ठीक है, सिमिलरली द ओल्ड मैन टुक द हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो ओल्ड मैन क्या है? सिंगुलर है, पास्ट टेंस में टुक, शिफ्टेड, ये क्या है? पास्ट टेंस है। सिमिलरली द पासर बाय हेल्प डॉग विक्टिम बाइट। तो ये पास्ट टेंस जो है, यहाँ भी ये पास्ट टेंस है। तो आपको प्रेजेंट पास्ट के बारे में समझ आएगा जब फर्स्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और अगर हैज हैव हैड होता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो नीलेश हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट इज एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस इन द प्लेग्राउंड। ना ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या है? प्लूरल नाउन हो गया।
तो इसके साथ हमने आर लगाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट। इसके साथ हम इज नहीं यूज कर सकते। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई के साथ हम एज एम ही यूज करेंगे, आई के साथ इज नहीं यूज कर सकते, आई के साथ आर नहीं यूज कर सकते। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो आई एम ए सिटी, वी कैन नॉट रन अवे लाइक दिस, वी जो है वो प्लूरल है आई का, तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। बट ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी में प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही इज टू वीक टू वॉक, ही के साथ इज यूज किया है, शी के साथ इज यूज किया है, सिंगुलर है क्योंकि, दे के साथ आर यूज किया है क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है। आया समझ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हम कर रहे हैं तो अंडरस्टूड और नॉट? अभी Yes, देखो, ma'am. आई सपोज वी आर, वी के साथ हम ना तो इज यूज कर सकते हैं ना एम यूज कर सकते हैं क्योंकि वी प्लूरल है, तो वी आर, ठीक है ना। दे वर, दे के साथ हम वॉज नहीं यूज कर सकते, तो दे वर, ठीक है। आई के साथ एम यूज किया, मिसेज पैकल्टाइड सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज यूज किया। व्हाट इज द ऑफर? इज इट क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। हेलो मैम। हाँ यस बोलो। आपका ये गूगल क्लासरूम है ना, हम्म आपने दिसंबर 4 में ना नोट्स फॉर स्टोरेज करके सेंड किया, हम्म फिर उसके बाद एक्सरसाइज ऑन यूनिट 1 करके, हम्म उसमें ट्रू और फॉल्स है। हाँ, एक्सरसाइज ऑन यूनिट 1 ना, वो देखो जो, इंग्लिश 1 करके लिखा है। हाँ वो यूनिट 1 के लिए लिखा है, तो वो यूनिट 1 लिटरेचर का है ना बेटा, हाँ जिसमें मैंने तुम्हें नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, प्लॉट, सेटिंग, लोकेशन ये सब करवाया था, ठीक है। तो हाँ, उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है उसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ना। मगर हम लोग सीएस में है ना मैम। बट तुमने आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया है ना क्लासरूम, मैंने थोड़ी ना तुम्हें बोला था, वो मैंने बोला था नहीं, इंग्लिश एनसिलरी के स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ आपका 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 भी सीएस है ना, तो मैंने आपके इसमें ज्वाइन किया। अरे बट मैं सीएस और इंग्लिश एनसिलरी दोनों पढ़ाती हूँ, ओके, ठीक है। यस मैम। इज इट क्लियर? तो आपने वो इंग्लिश एनसिलरी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, सीएस का ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया है वो मुझे नहीं मालूम। ज्वाइन किया है मैम। ये उसमें मैंने ये ग्रामर एक्सरसाइज भेजी है। मैम, आई हैव 3 क्लासरूम ऑफ सीएस। नहीं, 3 क्लासरूम ऑफ सीएस है तो हाँ मेरा भी है उसमें। मारिया शेख, हाँ शर्मिला हाँ, आपका नाम, मैं शर्मिला ही हूँ। हाँ और रोजलिना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। इंग्लिश का तो 4 है। आप आपके इसमें ही वही लिखा है अरे वो एक्सरसाइज। इंग्लिश के ग्रुप में भेजा है मैंने, सीएस के ग्रुप में नहीं भेजा है। नहीं, गूगल क्लासरूम में मैम। अरे वो गूगल क्लासरूम इंग्लिश का है बेटा, सीएस का नहीं है, ओके ठीक है। यस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्रामर एक्सरसाइज किधर मिलेगा मैम? वो ग्रामर का अलग क्लासरूम है गूगल का। दैट नॉट है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, आपने गलती से दूसरा क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है मैम, इंग्लिश। कैन यू सेंड इन ग्रुप सी दैट लिंक ऑफ क्लास? तुम्हारा कोई फ्रेंड भेज देगा, रिक्वेस्ट करो उसको जिसने सीएस का क्लासरूम ज्वाइन किया है, ठीक है। अगर आई कोई नहीं नॉट नो भेज, मैम, हाँ आई नॉट नो हु अरे तो आप सीएस का कौन सा डिवीजन है आपका? ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी बोल यस रहे। मैम, ग्रुप सी। ग्रुप सी में कोई भी स्टूडेंट गूगल क्लासरूम का लिंक भेज देगा सीएस का, ठीक है। ओके नहीं भेजेगा तो मैं आई विल मैसेज। मैम, आपको भी मैं मैसेज किया था। हाँ क्या? आई एम रॉबिन करके। हाँ, अभी इंडिविजुअली आप मैसेज करते हो तो मुझे समझ नहीं आता ना ऐसे। यस तो अभी एक क्लास में 300
150 बच्चे हैं, अगर मेरे को सब इंडिविजुअली मैसेज करेंगे और मैं सबको इंडिविजुअली जवाब देने लगूंगी तो बहुत हो जाएगा ना. यस मैम. इज इट क्लियर? नहीं, इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज टेल मी योर प्रॉब्लम, बट मैंने वो नोट किया था और मैं क्लासरूम में मैं हमेशा पूछती हूँ, जो भी इंडिविजुअल स्टूडेंट मुझे कुछ भी भेजता है ना क्वेश्चन, मैं उसको अगर जवाब नहीं दे पाती हूँ किसी कारण से, तो मैं क्लास जब लेक्चर लेती हूँ तो हमेशा पूछती हूँ. नोट करना तुम ये बात. ओके. यस ओके, मैम. तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो इंग्लिश एंसिलरी या इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, वो इंग्लिश एंसिलरी या लिटरेचर का गूगल क्लासरूम में रहो, और जो सीएस का है, सीएस का भी क्लासरूम बनाया हुआ है मैंने, गूगल क्लासरूम. तो कोई स्टूडेंट अगर आपको नहीं भेजता है तो मैं भेजूंगी, ठीक है. और ओके. सीएस का क्वेश्चन बैंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा. तब तक मैंने जो क्लासरूम में एक्सरसाइज शेयर की है वो करो, ठीक है. ओके मैम. वेरी वेरी थैंक यू. Understood? Can I थैंक end यू the मैम. lecture? यस मैम. Okay, bye.